Okay, so yes, hello, welcome everyone. How are you all doing today? I'm Dr. Sumaya. I'm here again to teach you a new topic. And yes, today's topic is going to be very challenging and interesting though. We are going to talk about viruses. Coronavirus, yaad aa gaya everyone? Chaliye, okay, we will talk a lot about virus today and how they were discovered, kaise, what is the thing viruses have, do they have a cell body, are they living organism, are they non-living organism, everything regarding virus we are going to discuss today. So stay tuned with me and continue. So first question, are viruses living? क्यों बच्चों, viruses living हैं या नॉन लिविंग है? आर दे लिविंग, आर दे नॉन लिविंग? फर्स्ट क्वेश्चन विच कम इन योर माइंड, दिस इज दिस. ठीक है, सो बेटा you have studied chapter number 2 biological classification where R.H. Whitaker has given 5 kingdom classification. क्या था? Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Do he have mention about viruses there? No. क्यों? Viruses, they don't have a cell body. So the basis was their cell body. And when someone is not having a cell body, so थोड़ा सा it is difficult to recognize them as a living organism. You know, जब chapter number 1 था, the living word, वहाँ पे one of the basis for a living organism ये भी था कि they have a cell body. Cell is the basic structural unit of life. और उसके बाद when one was having the cell, then metabolism was there, and the organism having the cell body and showing the metabolism was recognized a living entity. Viruses क्या हैं? They are non-living. कब? I'm not saying that they are non-living only. They are non-living outside a cell. Outside a cell body, they are non-living. But when inside a cell बोल रही हूँ, I am not saying कि they have a cell body. नहीं, they don't have their own cell body. But when they are inside a cell, किसका cell? Host cell. When they are inside a host cell, then they are proving themselves to be living. पहली चीज you should always remember के viruses के पास no cell body. ठीक? So you can say कि they are without cell, they are acellular organism. They don't have their own cell. Right? Clear? Next point, when they are outside a cell, they are behaving as non-living organism. When they capture some host cell body, there they are behaving as living organism. So कोई भी चीज, if anything is capturing a host, उसका meaning parasite है वो. So viruses, they are capturing the host cell, they are coming inside the host cell. So viruses are typical parasite, वो भी endoparasites. So viruses are endoparasitic in nature. पैरासाइट है, सो डिजीज कॉजिंग करेगा. यस, पैरासाइट है तो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करेगा. तो यही तो है कि कैसे डिस्कवर हुए. एक डिजीज होती है, देयर इज अ डिजीज टोबैको मोज़ैक वायरस. इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट वर वर्किंग. ठीक है, एक रशियन साइंटिस्ट है डीजे इवानोविस्की. चलो याद करते हैं, लेट्स रिमेंबर रशिया और सब कुछ याद कर लेते हैं. So there was a Russian scientist. The name of this man is DJ Ivanovsky. He was working on a tobacco plant and he saw some mosaic patterns there. कैसे mosaic patterns थे? ऐसे कुछ. The plant was saying little bit blotching. So जो ये mosaic pattern मिला और
अब क्या हुआ कि ही थॉट कि इट इज बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया समथिंग, ठीक है। मोज़ैक पैटर्न वाज सीन इन टोबैको लीफ। अब इवानोविस्की बेचारे सीधे साधे अभी तक इट वाज ओनली नोन कि बैक्टीरिया होते हैं, सो उन्होंने सोचा कि इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। But you know कि when you pass out a bacteria through a filter, that liquid becomes sterile. So he also pass out that liquid of the plant which was oozing out from the leaves through a filter, membrane filter, which can filter all the bacteria. Okay, but to his surprise, he come to know कि अभी भी that liquid was transferring the disease to the other plants. So to that liquid he called Contagium vivum fluidum. याद रखना है, Contagium vivum fluidum meaning a contagious fluid which is transferring a disease to other. यही तो सीधी सी बात है कि एक ऐसा लिक्विड जिससे डिजीज दूसरे को ट्रांसफर हो रही है, कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक। तो ये तो भाई रशियन थे। आफ्टर सम टाइम डच लोग आए, आफ्टर सम टाइम डच आए और साइंटिस्ट आए। द नेम ऑफ दिस मैन इज बीजरिंग, WM बीजरिंग। इन्होंने क्या करा, he was also studying on this TMP और he was the man who first coined the term virus, ठीक। वायरस का मीनिंग होता है venom, poison, ठीक। So it was actually a venomous liquid as per his thought which is giving out the disease to the plant। तो first वायरस जो डिस्कवर हुए हैं दे आर टोबैको मोज़ैक वायरस, और ये भी याद रखना है कि इट इज अ प्लांट वायरस। सो फर्स्ट वायरसेस डिस्कवर्ड आर प्लांट वायरसेस। कैसे है बेटा ये, किसी का भी, जब मैंने कहा व्हेन आई सेड कि दे टेक कंट्रोल ऑफ द होस्ट सेल मशीनरी, तो होस्ट सेल मशीनरी के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए किस चीज पे आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, किसी के भी न्यूक्लिक एसिड पे। इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ओवर होस्ट सेल मशीनरी यू नीड टू टेक कंट्रोल ओवर द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड किसी का भी डीएनए हो सकता है, किसी का भी आरएनए हो सकता है। किसका आरएनए होता है, वायरसेस में आरएनए देखा गया है। नॉट ऑल वायरसेस आर आरएनए वायरसेस, सम आर डीएनए वायरसेस, सम आर आरएनए वायरसेस। बट नॉर्मल जो सेल होता है, इफ यू रिमेंबर द सेंट्रल डॉगमा, जो बेसिस होती है ये होती है ना बेटा, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, यही तो होता है। डीएनए यूकैरियोटिक सेल में नॉर्मली, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पे भी डीएनए, यूकैरियोटिक सेल में, सेल वीडियो याद करो मेरा, जाके देखना। डीएनए होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड, नॉर्मल जितने भी हैं, बट वायरसेस में आरएनए भी देखा गया है एंड डीएनए भी देखा गया है। सो डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड जब आरएनए से प्रोटीन बनती है इसे वी कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो प्रोटीन एट द एंड बनेगी, उसको कोड करने वाला है डीएनए, ठीक। यहां पर अगर कोई ऐसी चीज आ जाए आपके सेल में विच टेक कंट्रोल ऑफ योर डीएनए, और जब आपके डीएनए पे समवन इज कंट्रोलिंग, दैट मीन्स कि दैट ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोटीन ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने टाइप की प्रोटीन अब वो कोड करवाएगा। तो कितना अच्छा है, मतलब कितनी, हाउ मच इवोल्यूटेड दे आर, कि कोई नहीं, कुछ नहीं, दे डोंट हैव सेल वेल, कुछ नहीं, मजे से आए हैविंग अ न्यूक्लिक एसिड और आराम से आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया। बट सिर्फ न्यूक्लिक एसिड नहीं, इनके पास एक और चीज भी है, दे हैव गॉट प्रोटीन एज वेल, जो उनके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रही है।
चलो आगे बात करते हैं इसकी। तो जो पहले वायरसेस हैं दैट आर प्लांट वायरसेस, और जो टीएमवी का वायरस है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। थोड़ी सी हिस्ट्री, तो पहले इवानोविस्की आए, देन इवानोविस्की ने उसको बोला कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, देन बीजरनिक आए, उन्होंने वायरसेस तक बात पहुंची। तो ये बातें चल रही थी, इवानोविस्की आए 1892 में, देन यहां पर बीजरनिक आए, उसके 6 इयर्स बाद उन्होंने वर्क किया 1896 में। थोड़ा सा टाइम 1930 तक आते आते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। बाय 1930 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड। सो अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया। अराउंड 1936 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है स्टैनले। उन्होंने क्या करा कि पूरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करी है वायरस की, और ही वाज द फर्स्ट मैन हु क्रिस्टलाइज्ड द वायरसेस। जी यू आर राइट। तो क्या इट इज पॉसिबल टू क्रिस्टलाइन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म? प्योरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल, बट वायरसेस कुछ ऐसे हैं कि when they are outside the cell they behave as non-living objects and yes they can be crystallized। तो W. स्टैनले इन्होंने ये काम करके दिखाया कि क्रिस्टलाइज्ड भी करा। चलिए ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा जानते हैं वायरल नेचर के बारे में। वायरस को 2 टाइप ऑफ वायरसेस हो सकते हैं, आरएनए वायरस इज पॉसिबल, डीएनए वायरस इज पॉसिबल। बेटा ये हो गया एक एज पर देयर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वायरस खुद एज सच क्या है, दे हैव अ न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए या आरएनए है, अलोंग विथ प्रोटीन, उनके ऊपर एक प्रोटीन कोट है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वायरसेस आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरसेस और क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन भी यू कैन कॉल देम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब एक और पॉइंट, अब एक चीज और जानते हैं कि डू वायरसेस अफेक्ट प्लांट। ये तो आपको पता चला कि टीएमवी तो भाई प्लांट था। डू वायरसेस ह्यूमन बीइंग्स? भाई कोविड, एचआईवी, ये सब क्या है, दे आर तो ह्यूमन बीइंग को कर रहे हैं ना, एनिमल वायरसेस हैं। बैक्टीरिया को भी वायरस हो सकते हैं, यस, वहां पर भी वायरसेस आर पॉसिबल। इनफैक्ट इंसेक्ट वायरसेस भी देखे गए हैं। तो एज पर एनसीईआरटी चलते हुए लेट्स डिवाइड द वायरसेस इनटू 3 मेन टाइप्स। Plant viruses, animal viruses and bacterial viruses। बेटा तुम लोग को एक नाम स्पेशली यू हैव टू रिमेंबर कि बैक्टीरियल वायरसेस को वी कॉल फाजेस, बैक्टीरियोफाजेस। चलिए याद कर लीजिए, बैक्टीरियोफाजेस। ठीक, 2 स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू वॉच राइट नाउ। एक टीएमवी का देखते हैं और एक बैक्टीरियोफेजेस का देखते हैं। पाइनएप्पल देखा है? आई गेस कि एवरीवन लव्स दिस पाइनएप्पल। देखा भी होगा, खाया भी होगा लिटिल बिट। चलो आज पाइनएप्पल बनाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और उसमें लेट्स मेक द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बेटा वायरसेस जैसे आपको पता है कि दे आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, एक न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड चीज इज द प्रोटीन कोट या एनवेलप। तो ये जो वायरसेस का प्रोटीन कोट है
उसको वी गिव अ वर्ड कैप्सिड। हाँ बेटा यही कैप्सिड होता है, दिस इज द कैप्सिड, प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड है। अभी आपको पता है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस, है ना, टिपिकल प्लांट वायरस है, फर्स्ट प्लांट वायरस है, फर्स्ट वायरस है जो डिस्कवर हुआ है। सो ये जो है दिस इज जस्ट अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है ये, राइट। तो इस एरिया में जहां पर ये रहता है पार्ट, इसको कहते हैं कोर, और ये आपने देखा कैप्सिड। अब कैप्सिड में मैंने बहुत सारे ब्लॉक बनाए हैं, ठीक है। सो इस एक इंडिविजुअल यूनिट को वी कॉल्ड, बिल्कुल सही, वी कॉल्ड कैप्सोमियर्स। इस इंडिविजुअल यूनिट को यू कॉल्ड कैप्सोमियर्स, एंड नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स दे ज्वाइन टू फॉर्म अ प्रोटीन कोड और कैप्सिड, ठीक है, क्लियर। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो टीएमवी का जो वायरस देखा गया दैट इज अ आरएनए वायरस। तो बेटा क्या तुम मुझे बताओगे कि व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन आरएनए एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए। डीएनए के याद करो तो इट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। तो आरएनए में बेटा थाइमीन की जगह पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन के प्लेस पे यू आर हैविंग यूरासिल। तो जो न्यूक्लिक एसिड जा रहा है टीएमवी का, वहां पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल आर प्लेस्ड, ओके। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये सारे पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। चलिए तो ये टीएमवी हो गया। दूसरा एक और देखते हैं, बैक्टीरियोफेज। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बुक में है ना, ऐसा कुछ। तो बैक्टीरियोफेजेस में यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पे दे आर द डीएनए वायरसेस। डीएनए तो देखो बेटा दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये वही चीज हो गई इसका कैप्सिड और दी प्रोटीन कोड। ये क्या है, इसका नेक रीजन है, एंड दिस नेक रीजन इज इनक्लोज्ड बाय अ शीथ। इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द बेस प्लेट, एंड नीचे में बच्चों टेल फाइबर्स, टेल फाइबर्स, ओके, टेल फाइबर्स। चलो कुछ चीजें तुमने जानी। एनिमल वायरसेस पे जब तुम आते हो, जैसे तुम HIV का देख लो, डिफरेंट शेप्स होते हैं, अंदर में दो लीनियर आरएनए लगे हुए हैं, नॉट डबल स्ट्रैंडेड, दो लीनियर आरएनए लगे हुए हैं, उसके ऊपर न्यूक्लियोकैप्सिड है, देन कैप्सिड है, राइट, एंड देन एट द एंड आते आते लिपोप्रोटीन्स है, मींस बहुत टाइम इट इज प्रोटेक्टिंग। तो जो थोड़े एनिमल वायरसेस तक जा रहे हैं तो मोर कोटिंग्स आर सीन। हम कहते हैं कि दो चीजों से वायरस बना हुआ है, एक उसका न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड इट्स प्रोटीन। बट बेटा यू कैन सी कि जो आगे के हाईली वाले वायरसेस जा रहे हैं, इन्फ्लुएंजा चला जाए या HIV, वहां पर लिपिड इज ऑल्सो पॉसिबल, लिपोप्रोटीन भी देखे गए हैं। चलो तो when we talk about viruses, तो how they actually infect, viruses कैसे इन्फेक्ट करते हैं, let's see a journey of a bacteriophage. So there are two types of viral cycles which are possible. Two category of viral cycles are possible. One is called lytic cycle and the other is called lysogenic cycle. क्या डिफरेंस है बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, ये जानते हैं पहले। तो बेटा पहले एक सेल बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियल वायरस है ना, दे आर बैक्टीरियल वायरस। तो एक बैक्टीरिया का सेल और बैक्टीरिया का
सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, याद है? चलो, प्रेजेंट जो एरिया दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म रीजन ओनली। अब इसके ऊपर अटैक करने कौन आ रहा है? बैक्टीरियोफेजेस। आगे भाई अटैक, दे विल इंसर्ट देयर टेल फाइबर्स हेयर। अब बैक्टीरिया जो सेल वॉल है दैट कैन बी डिस्टर्बेड बाय द लाइसोजाइम एंजाइम, यहां पर दे विल give some lysozyme enzyme and through that they pierce a hole over here, और उस होल के थ्रू यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, उस होल के थ्रू व्हाट इज पॉसिबल कि वायरल जीनोम इज टेकिंग एंट्री इनसाइड अ होस्ट सेल, अ बैक्टीरियल सेल। तो ये जो वायरल का जीनोम था यहां से चलता हुआ अब नाउ इट इज इनसाइड हेयर। अच्छा, बैक्टीरिया का जीनोम ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब यहीं पे द साइकिल इज डिसाइसिव कि वेदर इट इज लाइटिक या वेदर इट इज लाइसोजेनिक। जो वायरल का जीनोम आ रहा है बेटा, अगर ये ऐसे है, ठीक है, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम इज रेप्लिकेटिंग, अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस चला रहा है कि जैसे ई कोलाई है, इट डबल्स इन एवरी 20 मिनट। तो जैसे अपना बैक्टीरिया अपना रेप्लिकेशन चला रहा है और वायरस मीन टाइम क्या कर रहा है? अपना रेप्लिकेशन चला रहा है, मीन्स इट इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ होस्ट सेल्स। और बहुत सारे होस्ट के सेल की जो मशीनरी है, होस्ट के मेटाबॉलिज्म पे वायरस इज टेकिंग कंट्रोल, और वो अब क्या कर रहा है कि अपने वायरल पार्टिकल्स बना ले रहा है इनसाइड अ host cell. So lot of viral particles are formed inside a host cell. अब अगर कोई चीज you are putting in high amount, बहुत ज्यादा अगर तुम डाल रहे हो तो क्या होने वाला है? बस्ट होगा। यहाँ पर भी cell will burst and the viral particles they come out by the bursting of the cell because of excess viral load. The viral particles they come out. यहाँ पर भी बेटा the same lysozyme is helping in the bursting of the cell wall. ठीक, ये बात क्लियर? तो when something is bursting, something is lysing, बिल्कुल सही। So this cycle is a lytic cycle. ठीक है, याद रखेंगे कि यहां पर वायरल जीनोम इज नॉट इनकॉर्पोरेटिंग विद द बैक्टीरियल जीनोम। ओके, ऐसे फेज को यू कैन ऑल्सो कॉल्ड अ वायरुलेंट फेज। दो वर्ड यहां पे भी मिलते हैं, वायरुलेंट और टेम्परेट, उसको भी ध्यान रखेंगे। दिस टाइप ऑफ फेज को यू कैन कॉल्ड अ वायरुलेंट फेज। दूसरी तरफ जल्दी से आते हैं बेटा ऑन दिस लाइसोजेनिक साइड। ये वही बैक्टीरियल सेल है, सेम बैक्टीरियल सेल था, इसके आगे अगर कंटिन्यू करवाते हैं यहां से, सो ये बैक्टीरिया का जीनोम एंड वायरल का जीनोम जब आया तो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द जीनोम ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम। बिल्कुल सही बेटा, ध्यान से देखो कि दिस टाइम वायरल जीनोम इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम। तो जैसे जैसे बेटा आपका बैक्टीरिया विल डिवाइड, जैसे मैंने बोला कि ई कोलाई डिवाइड्स इन एवरी 20 मिनट, तो साथ ही साथ ये डिवाइड करते जाएंगे, राइट? ये भी डिवाइड करते जाएंगे, ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ साथ व्हाट एल्स इज फॉर्मिंग, वायरल भी साथ ही साथ चल रहा है, राइट? ठीक, तो दिस टाइम आपका वायरस इज बिहेविंग एज ए प्रोफेज। ये वर्ड याद रखेंगे बेटा, दिस टाइम द बैक्टीरियोफेज या जो भी आपका वायरस है इज बिहेविंग एज ए प्रोफेज, कि वो अभी पूरा फेज नहीं बना है, इट इज नॉट अ किलिंग। ठीक, इस तरीके की साइकिल को यू कैन ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट साइकिल। टेम्परेट, वहां पर वायरुलेंट थी, दिस साइकिल को ऑल्सो यू कैन कंसिडर अ टेम्परेट साइकिल। तो ये ऐसे डिवाइड करते रहेंगे। दिस वायरस इज अ प्रोफेज until this turn out to be like this. Yes, अब ये साइकिल after some time can also convert into a lytic cycle. अब वहां पर लाइसोजेनी will end into lytic cycle. ठीक है, क्लियर?
आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बहुत सुना होगा T4 बैक्टीरियोफेज। बिल्कुल याद रखेंगे कि T4 बैक्टीरियोफेज इज शोइंग जस्ट लाइटिक साइकिल, नॉट दी लाइसोजेनिक साइकिल। दूसरी चीज, बैक्टीरियोफेजेस में आप देख रहे हैं कि जस्ट वायरल जीनोम इज एंटरिंग, जबकि जो एनिमल वायरसेस होते हैं वहां पर यूजुअली दे आर स्मॉल साइज, है ना, इनसे ज्यादा एटलीस्ट, और वो क्या करते हैं, एंट्री कर जाते हैं कंप्लीट, एंड एट द एंड उनका प्रोटीन, वो प्रोटीएजेस उसको फिनिश कर देते हैं, एंड देन आफ्टर टाइम, आफ्टर दैट दे कैन कंटिन्यू एज फॉर लाइटिक या लाइसोजेनिक, ओके, व्हेन दे हैव गॉट देयर नेकेड न्यूक्लिक एसिड। सो वापस से इसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि वायरसेस को यू कैन डिवाइड इनटू प्लांट, एनिमल या बैक्टीरियल वायरसेस। ज्यादातर बेटा देखा गया है कि मोस्टली प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरसेस। प्लांट वायरसेस के एग्जाम्पल टीएमवी, पोटैटो वायरस, राइट। लेकिन डीएनए वायरस भी देखे गए हैं इन प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव डीएनए, तभी वी कैन नॉट सी एकदम से कि प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरसेस, नहीं है, मोस्टली आर आरएनए वायरसेस। लेकिन एग्जांपल बेटा याद रखो, सीएमवी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, वो डीएनए वायरस है। एनिमल में भी दोनों कैटेगरी चल रही है, डीएनए की एज वेल एज आरएनए की, राइट। आपका ये जो HIV वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है, दे आर आरएनए वायरसेस। इधर डीएनए में हर्पीस का वायरस हो गया, या ये जो होते हैं पॉक्स के वायरसेस, दे आर डीएनए वायरसेस। बैक्टीरियोफेजेस डीएनए थे, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, यहां पे दे आर डीएनए वायरसेस। सो हमने बहुत सारी चीजें आज जानी हैं वायरसेस के बारे में। आपको एक वर्ड यू कुड हैव गॉट कि वायरसेस के बाद एक और वर्ड आपको मिलता है जो स्ट्राइक करता है, दिस इज वायरॉइड्स। दिस इज वायरॉइड्स। सो जब वायरसेस डिस्कवर हुए तो ये देखा गया कि वायरसेस आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। अराउंड 50 to 300 नैनोमीटर होता है वायरल पार्टिकल का साइज। एक वायरियन का साइज होता है 50 to 300 नैनोमीटर। बट जो बेस पेयर्स देखे गए, इफ यू काउंट देम इनटू बेस पेयर्स, तो जैसे आपका कोविड वायरस है, इट इज मोर देन 3000 बेस पेयर्स। HIV वायरस है, इट इज मोर देन 9000 बेस पेयर्स, है ना। वायरस में दो चीजें हैं मेनली, द न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज इट्स प्रोटीन कोड। उसके कंपैरिजन में देयर वर मोर disease causing elements which were discovered, and they are more smaller than the viruses. They have comparatively more smaller nucleic acid in relation to the viruses. यहाँ पे maximum देखा गया है 200, 300, 350 range of nucleic acid. तो viroids एक ऐसे organisms हैं which were discovered by, यहाँ पे you will enjoy कि this was discovered by T.O. Dinner in 1971. 1971 में T.O. Dinner थे, and तो I always say कि भाई डिनर करने आ रहे हैं तो वायरसेस ने लंच किया है, तो वायरसेस के लंच के बाद T.O. Dinner आए फॉर दिस डिनर। वायरॉइड्स अब डिनर करेंगे, तो ये वायरॉइड्स बेटा जो है 200 to 300 टाइप्स ऑफ बेस पेयर्स में रहने वाले हैं। और यहाँ पर टू योर सरप्राइज ये और स्मार्ट हो गए हैं, दे आर मोर इवोल्यूटेड, कि बस वायरसेस ने सेल बॉडी छोड़ी थी, इन्होंने तो इवन प्रोटीन भी लीव कर दी है। दे आर जस्ट न्यूक्लिक एसिड, और कौन से, सर्कुलर शेप में रहेंगे एंड आरएनए। जी यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है दिस इज ओनली आरएनए, सर्कुलर आरएनए रहने वाला है। यहाँ पर कोई प्रोटीन नहीं, लाइक वायरसेस कुछ नहीं, दे आर स्मॉलर देन द वायरल पार्टिकल्स। एक स्मॉलेस्ट वायरॉइड जो डिस्कवर हुआ है दिस इज कोकोनट कडांग वायरस। हंसना नहीं है, कोकोनट
कडांग वायरॉइड। ठीक, इसके बेस पेयर्स कितने हैं? 246 बेस पेयर्स। इट इज जस्ट 246 बेस पेयर्स जी। और भी वायरॉइड है लाइक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कॉजिंग वायरॉइड। सो बस अब यहां पर इस टॉपिक में जल्दी से कंपेयर करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड। वायरसेस में यू हैव सीन कि न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन कोट वाज देयर, बट यहां पे जस्ट न्यूक्लिक एसिड इज हियर। वहां पे इट वाज पॉसिबल बोथ डीएनए एंड आरएनए, यहां पे इट इज ओनली आरएनए इज देयर। ठीक, वहां पे लीनियर सर्कुलर सब दिख जा रहे थे, यहां पे इट इज ओनली सर्कुलर वाला आरएनए। तीसरी चीज, दे आर मच स्मॉलर इन बेस पेयर्स in relation to the viruses. So I hope that today you enjoyed a lot with me along with learning, and this topic is clear to everyone. So take care everyone, and I beg you leave for now. We will be meeting with another challenging topic. Okay, so take care. Bye bye.